तो कल का थोड़ा सा कर लें कि we had started titration। क्या ये formulas, फिर क्या कहानी थी कि proton donor, proton acceptor, bases, salt किस तरह बनती है, equations, 4 equations मेरे ख्याल से हमने की थी। एक सेकंड साइमल्टेनियसली में। अच्छा, उसके बाद we did अच्छा right at the end we did excess method। ठीक है, हमने वो सारे methods पढ़े थे। salt preparation किए। I'm just going to go through excess method would be used when you have an insoluble reactant और उससे आप soluble salt produce कर रहे हो। ठीक है, the other one is that you're going to use titration when the reactant is soluble and the salt produced is also soluble। तो reactions वही तीन चार reaction कौन कौन से थे? metal plus acid, base plus acid, बेस में मतलब हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड प्लस एसिड, कार्बोनेट प्लस एसिड, या फिर अमोनिया plus acid। That was the last one. Now titration, we were at titration. Titration may remember that the reactants are going to be soluble and the salt that is going to be produced is also going to be, it's also going to be soluble. So one example that we did yesterday was KOH hydroxide reacts with an acid to produce salt and water molecules. So uske andar all of the reactants were aqueous. और उसके अंदर I explained कि why can't you use excess method? You can't use excess method is that if you add KOH to H2SO4, you mix them, salt and water are going to be produced. But the problem would be कि अगर गलती से भी ना if you add too much KOH, तो the salt would be contaminated by the extra or excess KOH that you have added. और फिर vice versa, अगर गलती से भी आपने H2SO4 ज़्यादा डाल दिए, तो the unreacted H2SO4 would contaminate your salt. और आप उस you can't filter it out because it's soluble चीजों को you can't filter them out। ठीक है, excess में कर सकते थे, excess में the reaction was solid, insoluble, so you can just simply pick it up and और अगर वो powdered होता तो वो उसको filter out कर देते हैं, but you can't filter out अगर आपने गलती से भी ना if you have added too much of H2SO4 or too much of KOH। So the thing in this, the main task that you have to do is that KOH and H2SO4 have to be added in exact amount। फिर दूसरा मसला आ जाता था कि काउंट कौन करेगा कि every 2 molecules of KOH react with 1 molecule of H2SO4, which means if there are 2 million molecules of KOH, there should be 1 million molecules of H2SO4। लेकिन आपके सामने तो एक कलरलेस बीकर पड़ा होगा जिसके अंदर एक कलरलेस सॉल्यूशन होगा, तो आपको क्या पता कि कितने H2SO4 के पार्टिकल्स उसके अंदर, जैसे अगर आपके सामने एक ग्लास रख दिया जाए तो हाउ कैन यू फिगर आउट कि उसके अंदर कितनी NaCl डिसॉल्व्ड है भी कि नहीं है, शुगर तो नहीं डिसॉल्व्ड, तो but you can't really count molecules, although there are ways of counting them, लेकिन it would be too tedious। So what you do is कि you start titration, KOH, so you start titration, what you do is that KOH is added in the burette, that's one of the reactants, the other one is H2SO4 that's added into the conical flask, and you open the tap। Now when you नहीं हसन मॉलिक्यूल्स के कलर्स, लेट मी वो मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूं कि मॉलिक्यूल्स के कलर्स, ऑल्दो हमने अभी हमने कलर्स नहीं किए तो इसलिए अभी इस पार्ट को तो छोड़ ही देते हैं। चलो ठीक है सर। ठीक है, अभी इसके बाद कर लेते हैं। वो जो शीट मैंने नहीं दी हुई डेटा शीट, जी उस जी उसमें अच्छे से ही उसके अंदर एक्चुअली मतलब मैं दिखा भी देता हूँ उसके अंदर ना वो कलर्स पे हम आते हैं। अभी मैं कलर्स डिस्कस नहीं कर रहा, अभी हमने किए भी नहीं है। किधर ये रिवीजन वाली डेटा शीट है, ठीक है, तो उसके अंदर ना देयर इज वन सेक्शन वेयर खुल जाए पहले। अच्छा, देयर इज वन सेक्शन वेयर कलर्स आर मेंशन्ड समवेयर एट द कलर्स ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, तो इधर लिखा हुआ है कि ग्रुप 1, 2 and 3 आर जनरली, उनके जो कंपाउंड्स होते हैं दे यूजुअली वाइट इन कलर और वो कलरलेस होते हैं अगर उनका सोल्यूशन बनाया जाए। ठीक है,
बाकियों के कलर्स लिखे हुए हैं, लेकिन वो हम बाद में भी डिस्कस करते हैं, ठीक है, नॉट नाउ। ओके सर। लेकिन होपफुली ये पता होगा कि एसेट्स जो होते हैं ना, दे मोस्टली कलरलेस, मतलब ज्यादातर एसेट्स दे ऑल कलरलेस। अच्छा, एनीवेज, करना क्या था, KOH और H2SO4 दे हैव टू बी एडेड इन द एग्जैक्ट अमाउंट। तो आप क्या करोगे कि KOH टैप ओपन करोगे, KOH would start falling into this, KOH would react with H2SO4 और सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे। सो आहिस्ता आहिस्ता योर H2SO4 would start changing into the salt that you require। ठीक है, KOH का ड्रॉप डलेगा, H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा, it would form K2SO4 and a water molecule। But the thing is कि let's say there were 100 molecules of H2SO4, तो one by one every time you open a tap, KOH का एक molecule नीचे गिर रहा है, so one by one all the 100 molecules of H2SO4 they eventually get converted into your salt and water molecules। ठीक है, they eventually get converted into this। तो अब आपको टैप रोक देना चाहिए because all the H2SO4 has reacted और फिर all of it has gotten converted, they've reacted with KOH and they've gotten converted into K2SO4 and water। अभी भी अगर टैप, if you haven't turned off the tap, तो KOH अंदर डलता रहेगा, वो फालतू में डल रहा होगा क्योंकि there is no H2SO4 left। तो वो फिर एक्स्ट्रा KOH हो जाएगा और KOH बेसिक होता है, बेसिक means कि its pH is going to be 13 and तो आपने इतना KOH डालना है कि सारा का सारा H2SO4 रिएक्ट कर जाए। एक्स्ट्रा नहीं डालना कि वो एक्सेस में चला जाए, एल्स योर सॉल्ट इज गोइंग टू बी कंटामिनेटेड। ठीक है हमजा, मरियम, इज दिस क्लियर? हसन, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. जी सर। अच्छा, तो आपने टैप को ऑफ कब करना है? दिस इज द पॉइंट व्हेन यू नीड टू स्टॉप। वो पॉइंट पता किसका लगता है? एक तो आई वुड हैव टू प्रॉब्ली चेंज द बोर्ड क्योंकि इस पे मेरे ख्याल से इतनी चीजें हो गई हैं कि इट्स नॉट इवन लोडिंग प्रॉपर्ली। तो चलो वो देखते हैं चलता है कि नहीं चलता। अच्छा, सबसे पहले एसिड पड़ा हुआ है फ्लास्क के अंदर, तो द pH इज 1। ठीक है, देन यू स्टार्ट एडिंग KOH, तो सॉल्ट बनना शुरू हो जाएगी। सॉल्ट का pH है 7 एंड अगर आपने टैप ऑफ नहीं किया तो फिर एक्स्ट्रा KOH नीचे आ जाएगा, तो द pH इज गोइंग टू बी 13। सो आप pH मॉनिटर करोगे, अगर pH 7 हो गया इसका मतलब है द सॉल्यूशन ओनली कंटेन्स सॉल्ट नाउ बिकॉज ऑल द एसिड हैज रिएक्टेड और आपने एक्स्ट्रा बेस भी नहीं डाली। ठीक है, अगर pH 7 से ज्यादा हो गया इसका मतलब है यू एडेड टू मच KOH, कि वो एक्सेस में फालतू में पड़ा हुआ है, नीचे फ्लास्क के अंदर पड़ा हुआ है। और अगर the pH is acidic, इसका मतलब है कि there is still H2SO4 left in the flask। So this is the point where you have to stop the titration। So to stop the titration, what do you add? ये पता कैसा लगेगा कि pH 7 हो गया? You have to measure pH। There are many ways of measuring pH। एक तो ये डेटा शीट के अंदर ना गिवन है, यहाँ पे कहीं ना pH मेजर करने के लिए कलर्स वगैरह, इंडिकेटर कलर्स आर मेंशन्ड। ठीक है, दे यूज फॉर मेजरिंग pH कि मिथाइल ऑरेंज का कलर दिया हुआ है रेड इन एसिड, ऑरेंज येलो इन अल्कली, phenolphthalein is pink in alkali, colorless in acid, और आपके पास यूनिवर्सल इंडिकेटर है, दैट्स स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर वो रेड है, वीक एसिड के अंदर उसके डिफरेंट कलर्स हैं। ठीक है, ये भी आपको ना रिमेंबर, ये सारी चीजें ना ये आपको यू हैव टू मेमोराइज। ये जो 2 पेजेस मैंने दिए हुए ना, एट द एंड ऑफ द डे, अभी बेशक अगर अभी भी मेमोराइज करने की कोशिश करो, लेकिन सिर्फ 2 पेजेस हैं, ये अगर मेमोराइज हो गया ना, pretty much all of chemistry would be very easy। अच्छा खैर, indicators are solutions that added और मैं टाइट्रेशन एक्चुअली दिखा भी देता हूँ, एक सेकेंड। एसिड बेस, मगर एक सेकेंड, कोई ऐड वगैरह चल, 7 क्वेश्चन। 1 सेकेंड। ऑल्दो वीडियो तो पूरी स्ट्रीम नहीं होगी, तो मैं पॉज करके 1 सेकेंड, एसिड बेस,
just 1 second. We add skip करो पहले. अच्छा, just quickly मैं images के अंदर दिखा देता हूँ. अच्छा, ये पहली चीज. This is the first thing. If you can properly screen बड़ी कर दी है, ठीक है? If you can properly see this, the first thing that is done is Yes, sir. कि फ्लास्क के अंदर ना अब वो probably मेरे ख्याल से he's adding KOH. Let's say he's adding KOH in the flask, ठीक है? How do you transfer solutions? You use a pipette. तो ये जो device उसने use किया, that's a pipette, ठीक है? And this is called a pipette filler. ये एक suction device होती है. ये dropper type होता है कि if you want to transfer कि यहाँ पे ना solution पड़ा हुआ है and you want to transfer it over here, तो आप pipette filler जो है, that's a suction device, वो इसको ऊपर fill up करता है और उसको फिर release कर दो यहाँ जाके. So always remember the way you transfer solutions from a container to the conical flask, that's a pipette. ठीक है? Always remember a pipette. Pipette का ये होता है कि it only has one mark, which is 25 cm3. और आप टाइट्रेशन कॉनिकल फ्लास्क में क्यों करते हो? ऑल रिएक्शंस हैपन इन कॉनिकल फ्लास्क. हमने बिल्कुल स्टार्ट के अंदर एक्सपेरिमेंटल मेथड्स में पढ़ा था कि कॉनिकल फ्लास्क हैज अ स्मॉलर ओपनिंग. यानी इसका मतलब है कि इफ यू शेक इट या इसके अंदर लेट्स से एक वायलेंट रिएक्शन होता है तो देयर इज गोइंग टू बी लेस स्पिलेज. मतलब चीजें बाहर नहीं गिरेंगी इससे, ठीक है? इसके टॉप से ना, बिकॉज इट हैज अ स्मॉल ओपनिंग. द अदर थिंग इज कि यू कैन इजीली कलेक्ट गैसेस एज वेल. अगर गलती से आपको गैस कलेक्शन करने को मिल जाए तो you can put a stopper over here. It has a small opening. You can close it with a stopper, so you can collect gases. So always remember, reactions are usually performed in this conical flask. और pipette से ना आप conical flask को fill up करोगे. Fill up किससे करना है? हमारा क्या केस था? किधर गया? Where's a अच्छा, fill up किससे करना है? H2SO4 से. ठीक है? उससे आप fill up कर दो और once it has filled up, इसको जरा अच्छा, ये probably Sir. yes. Just 1 second, मैं उसको exact point पे ले जाऊँ. हाँ सर, क्या question है? सर मतलब अगर H2SO4 को हम लोग वीर से डालने सही है क्या? ऊपर डालना है उसको अल्टरनेटिव वे में कर लें. हाँ, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? मतलब ये मैं फिर से उस पर चला जाऊँ कि क्योंकि इन दोनों को रिएक्ट करना है ना, KOH और H2SO4 को. फिर मिथाइल ऑरेंज पहले फिर ब्लू होगा. हाँ, मतलब वो मैं करता हूँ, उल्टा करके भी कर लेते हैं. मैं कलर चेंज बता देता हूँ, ठीक है? तो पहले बस एक दफा ना ये टाइट्रेशन का सही. मतलब, और हसद वाली बात ठीक है, वो उसको ऑपोजिट करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. मतलब कलर चेंजेस डिफरेंट होंगे लेकिन फर्क कोई नहीं पड़ेगा. एंड में सॉल्ट ही बनेगी, ठीक है? अच्छा खैर, अब ये देख लो कि सही सर. अच्छा, अब ये देख लो कि ब्यूरेट के अंदर ना उसने ब्यूरेट में भी कलर सोल्यूशन है, नीचे भी कलर सोल्यूशन है. तो पता कैसा लगेगा टैप ऑफ कब करना है? ठीक है? हाउ वुड यू नो दैट? कि हमारे केस में H2SO4 पड़ा हुआ है ना, तो स्टार्ट में दिस वुड बी एसिडिक. पीएच क्या होगा? 1 होगा. ऊपर से जब KOH डलना शुरू होगा तो ये सॉल्ट में कन्वर्ट होता जाएगा. एक पॉइंट आएगा व्हेन द लास्ट मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 वो भी रिएक्ट कर जाएगा. तो फिर इधर क्या पड़ा होगा? सिर्फ सॉल्ट और वाटर पड़ा होगा. तो पीएच क्या हो जाएगा? 7. और अगर तब भी ऊपर से टैप ऑफ नहीं किया ना, KOH is still being added, तो वो फिर एक्स्ट्रा KOH चला जाएगा एंड pH would become 13. ठीक है? बेसिक हो जाएगा. अच्छा, anyways, he's going to add, I think he's going to add phenolphthalein indicator. पता नहीं चल भी रहा है कि नहीं. Just 1 second, let me. हाँ. अच्छा, ये देखो अब आप नीचे एसिड डला हुआ है, ठीक है? और ऊपर से ना he's adding या वही कर लेते हैं, H2SO4 नीचे और ऊपर KOH है. ठीक है? Let me go back to our titration. वो किधर है? फिनोफ्थलीन का कलर बताओ कि स्टार्ट के अंदर देयर इज एसिड इन द फ्लास्क, तो कलर क्या होगा? कलरलेस होगा. और जब ऊपर से KOH डालोगे तो सॉल्ट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी. और व्हेन यू आर एडिंग टू मच KOH तो कलर वुड टर्न पर्पल. इज दिस क्लियर? हमजा, मरियम, नूर, इज दिस क्लियर? हसन, क्लियर है? Yes, sir.
ठीक है। Yes, जी sir. सर। अच्छा, सो इन दिस टाइट्रेशन दिस इज एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग कि नीचे एसिड है तो कलरलेस है, बल्कि जब उसने स्टार्ट किया होगा बिल्कुल ही कलरलेस होगा, ठीक है, इट्स कंप्लीटली कलरलेस। लेकिन ऊपर से जब KOH डल रहा होगा ना, आहिस्ता आहिस्ता एसिड रिएक्ट करता जाएगा, सॉल्ट बनता जाएगा, वाटर बनता जाएगा। तो और ये करीब से देखो, वो जैसे ही KOH डलता है ना, KOH जब नीचे डलता है तो वो पर्पल होता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन वो KOH रिएक्ट कर जाता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो एक पॉइंट आएगा जब सल्फ्यूरिक एसिड खत्म हो जाएगा, तो KOH का अगर एक भी ड्रॉप डला ना, तो वो ये देखो अब वो परमानेंटली पिंक होता जा रहा है या पर्पल होता जा रहा है। तो ये वो पॉइंट है जब आपने टाइट्रेशन रोक दी। इसका मतलब है अब KOH आप ज्यादा डालना शुरू हो गया, यू हैव क्रॉस द पॉइंट, ठीक है। सो आपने कोशिश ये करनी है कि KOH ज्यादा ना डले। मतलब इसका मतलब है कि ऑल द एसिड हैज रिएक्टेड, ऑल द एसिड इज गॉन, and whatever you are adding now, KOH is not reacting with anything. तो इसका मतलब है कि the phenolphthalein indicator is turning purple। और ये आगे देखते हैं, ये इसको बार बार रिपीट किया जाता है। चलो इससे आगे तो खत्म हो गई टाइट्रेशन। जस्ट वांटेड टू शो यू किस हैव यू डन टाइट्रेशन इन स्कूल? पता नहीं क्या, अब तो वो स्कूल ही प्रॉब्ली बंद हो गए, बट हैव यू ट्राइड डूइंग टाइट्रेशन? यस सर वंस। ठीक है। हमजा कभी की है? नूर? Sir, I can't remember it honestly. ठीक है। रूट्स में हो ना आप टू वो हमजा? Sir, I was, now I'm not. अच्छा, चल ठीक है। O levels में usually they don't take people to labs most of the time. अच्छा, anyways, तो हमने एक्चुअली ना यही टाइट्रेशन अभी देखी थी कि सल्फ्यूरिक एसिड डाला हुआ है, phenolphthalein indicator was being used, मिथाइल ऑरेंज भी दिखा देता हूँ if I can find a methyl orange titration, just one second, वो देख लेते हैं जस्ट। एक तो इसको तो बंद करो। अच्छा चलो, दिस फिर से ऐड लग गया, एक सेकेंड। So this one is a methyl orange titration, और इसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड वो ब्यूरेट में डाल रहा है। हम अज्यूम करते हैं कि KOH है, ठीक है, हमारा वाला रिएक्शन ये। और HCl एसिड जो है ना वो फ्लास्क के अंदर, एंड दे गोइंग टू यूज अ पिपेट। ये वो सस्ता वाला पिपेट फिलर है। वो जो पिछली टाइट्रेशन थी ना उसके अंदर ही वाज यूजिंग एन इलेक्ट्रॉनिक पिपेट फिलर, that was the expensive one. This one is the cheaper pipette filler. Okay, whatever, ये देखो, ये this is the pipette that's being filled. It's like a dropper. इसको वो I mean they're going to release this, ये इसलिए मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि P5 के अंदर ना ये थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स वगैरह ये देखने चाहिए, ठीक है, क्योंकि उससे फिर थोड़ा ज़्यादा याद रहता है। अच्छा, एनीवेज अगले पार्ट पे चले जाते हैं। अच्छा, ये देखो, ये पिपेट का यूज वगैरह, यू यूज ये कि ये वो रिएजेंट बॉटल है, ठीक है, ये वो केमिकल की बॉटल है जिसके अंदर एसिड पड़ा हुआ है, ठीक है, दिस इज वेयर द एसिड इज। शी इज गोइंग टू यूज अ पिपेट टू ट्रांसफर द एसिड इनटू दिस कॉनिकल फ्लास्क, और वो उसको एम्प्टी कर देंगे उसमें। अच्छा, एनीवेज, मिथाइल ऑरेंज के कलर्स कहाँ गए? ये मिथाइल ऑरेंज इज बीइंग एडेड इन एसिड। रिमेंबर देयर वाज एन एसिड इन दिस, तो वो रेड है, ठीक है, एसिड के अंदर इट्स रेड। इज दिस क्लियर? कैन एवरीवन सी दिस? इज इट क्लियर है हमजा? यस यस। Yes, sir. जी सर। अच्छा, अब वो नाउ शी स्टार्टेड एडिंग, वो ऊपर से ना बेस ऐड करनी शुरू कर दी है। जब बेस थोड़ी सी भी ज्यादा ऐड कर दोगे ना, एक्स्ट्रा न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट जब न्यूट्रलाइज हो जाएगा, एसिड खत्म हो जाएगा, उसके आगे अगर आप बेस ऐड करोगे तो दैट वुड इंडिकेट कि आपने वो येलो हो जाएगा, ठीक है। तो वो देख लेते हैं, ऑरेंज येलो। तो
करीब से दिखा दो, ये नीचे एक तो इनकी राइटिंग आई जा रही है। सर इसको शेक करना भी जरूरी है? हाँ, शेक करना इसलिए जरूरी है क्योंकि शेक करने से रिएक्शन ज़्यादा तेज होता है ना, पार्टिकल्स आपस में ज़्यादा कोलिजन्स होंगी जब आप उसको विगरसली शेक करते हो। और कॉनिकल फ्लास्क का फायदा ही है ना, कॉनिकल फ्लास्क हैज अ स्मॉल ओपनिंग। यही रिएक्शन अगर इफ यू आर डूइंग इट इन अ बीकर, बीकर की बड़ी ओपनिंग है ना, तो उसको शेक करोगे तो क्या होगा, चीजें उससे बाहर गिरने के, स्पिलेज के चांसेस है। सही। ठीक है, यस सर। तो इसलिए ऑलवेज रिमेंबर रिएक्शंस आर ऑलवेज डन इन कॉनिकल फ्लास्क, मतलब वो नंबर वन प्रेफरेंस है। कोई भी आपको कहेगा ना एक्सपेरिमेंट डिजाइन करो, रिएक्शन कॉनिकल फ्लास्क नहीं करना है। अच्छा खैर, एनीवेज वी कलर दिखा दे, ये वो दिखा नहीं रहे। ये अभी भी रेड है। अब जैसे ही ऊपर से KOH एक्स्ट्रा डलेगा ना और एसिड सारा रिएक्ट कर चुका होगा, तो एकदम से ना इट्स गोइंग टू टर्न ऑरेंज येलो। ये भी होने वाला है, मतलब ये एंड पॉइंट। ठीक है, ये देखो वो तो येलो ही हो गया बिल्कुल ही। ठीक है, तो इसका मतलब है वो जो आखिरी ड्रॉप डाला था ना, उसका मतलब है कि ये ऑल ऑफ अ सडन इफ यू गो बैक, मिथाइल ऑरेंज पहले रेड था क्योंकि एसिड पड़ा हुआ था। वो एसिड आहिस्ता आहिस्ता मतलब ऊपर से क्यूएच ऐड हो रहा था, इट ऑल गॉट कन्वर्टेड इनटू सॉल्ट एंड वाटर। फिर एक एक्स्ट्रा ड्रॉप डला है ना, और उसका मतलब क्यूएच थोड़ा ज्यादा डल गया बिकॉज ऑल द एसिड इज गॉन, तो वो एकदम से टर्न इनटू ऑरेंज येलो। इज दिस क्लियर? यस सर। तो बस ये हो गया खत्म। ठीक है, बाकी वो क्लियर है? नूर, इज दिस क्लियर? हमजा क्लियर है? Yes, sir. तो अब टाइट्रेशन, अच्छा तो इसके लिए नंबर वन इंपॉर्टेंट थिंग इज यू हैव टू इसका रट्टा लगाना, यू हैव टू मेमोराइज what's the color of methyl orange, what's the color of phenolphthalein. And the other thing is, it doesn't really matter if you add KOH at the top or H2SO4 at the bottom. इन दोनों की पोजीशंस जो है ना वो स्विच भी हो सकती हैं। हम अगले के अंदर ना अगला एक करेंगे, उसके अंदर आई एम गोइंग टू स्विच द पोजीशंस, तो कलर्स बस चेंज हो जाएंगे। ठीक है, बट वी गोइंग टू टॉक अबाउट दैट लेटर। पहले इसकी डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं। How would you describe, let's say you get a 4 mark or 5 mark question, how would you describe the whole process? ठीक है, the whole description. तो डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइबिंग टाइट्रेशन, और क्वेश्चन ये कि मेक प्योर ड्राई क्रिस्टल्स, so that's the question, make pure dry crystals of what, K2SO4, right? तो पहले तो आप सोचोगे इक्वेशन क्या है, तो इक्वेशन हमने सोच ली है कि it's KOH plus, that's 1 mark, H2SO4, they should be reacted together to form K2SO4 plus water, and there's going to be, now the equation is balanced. ठीक है, all of them are aqueous, and this one is सर वन क्वेश्चन। हाँ सर हम लोग को आपने पहले बता दिया था, वैसे कंफर्म कर रहा हूँ, शो कर रहा हूँ कि K2SO4 लिखा हुआ था, हम लोग को पता है कि मेटल K होगा और SO4 मतलब कि H2SO4 होगा, है ना? हाँ, मतलब वो ये लिखा हुआ है ना, दिस इज व्हाट्स गिवन कि उन्होंने K2SO4 कहा हुआ है ना, तो ये हमने प्रैक्टिस भी किया था ना कि K2SO4 सॉल्ट बनानी है, कितने तरीके हैं, एक मेटल प्लस एसिड है, एसिड कौन सा होगा, H2SO4, H2SO4 कैसे? मेटल कौन सा होगा, K, तो मेटल प्लस एसिड में क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, राइट? यस सर। लेकिन यस सर। मैंने कहा था ये वाला रिएक्शन नहीं करना कि मैजेट मेटल्स जो होते हैं ना वो सिर्फ मैजेट वाले मेटल्स यूज करने हैं, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन एंड टिन। पोटेशियम जो है ना वो एक्सप्लोजन होगी दिमाग, मतलब वो जिस तरह वो लैब में वो आराम से रिएक्शन कर रही थी ना वो जो लड़की, अगर वो पोटेशियम यूज कर रही होती तो वो पूरी लैब जो है ना वो उसको आग लग जानी थी। ठीक है, सो यू कैन डू। अच्छा। अच्छा, तो दूसरा फिर कौन सा रिएक्शन हमने किया था कि सॉल्ट बनानी है तो मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस एसिड, तो मेटल हाइड्रोक्साइड कौन सा होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4, मतलब H2SO4 ही होगा ना क्योंकि उसी में SO4 बनेगा। ठीक है सर?
सही सही सही। और तीसरा रिएक्शन था कि कार्बोनेट प्लस एसिड भी हो सकता है, कि पोटेशियम कार्बोनेट प्लस एसिड, तो उसमें सॉल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ठीक है। अच्छा गॉट इट एनीवेज, सर। we are going to write the description now. The description is going to be कि सबसे पहला पॉइंट्स पे लिख लेते हैं, fill the burette with KOH। ठीक है, तो हमने ब्यूरेट को भर दिया। फिर कॉनिकल फ्लास्क पिपेट यूज करना है, पिपेट, और रिमेंबर पिपेट होता ही 25 cm को, मतलब वैसे तो किसी भी साइज का हो सकता है, स्कूल लेबोरेटरी के अंदर इट्स यूजुअली 25 cm क्यूब, सो पिपेट 25 cm क्यूब ऑफ H2SO4 into the conical flask। Sir, And you, yes, what do you mean by pipette? नहीं वो नहीं था कि स्पेशली इन दिस किधर क्या है, आई थिंक दिस वन, इधर बीच में, हाँ दिस पार्ट, लाइक शी हैड अ रिएजेंट बॉटल, ठीक है, ये यहाँ पे पड़ा हुआ है एसिड की, Sir, ठीक है, एक सेकेंड इफ आई कैन, हाँ ये कॉनिकल फ्लास्क पड़ा हुआ है, हाउ डू यू ट्रांसफर, दिस इज द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, राइट, yes, sir. यू आर सपोज टू ट्रांसफर इट इनटू द कॉनिकल फ्लास्क। तो एक तो सिंपल तरीका है कि इसको पकड़ो और इसके अंदर उल्टा दो, हमजा क्लियर है, Yes, sir. but you won't be measuring it, मतलब लैब के अंदर the technical method is there's this, I mean it's like a, this is the pipette, कि आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर पिपेट डिप करते हो, the hydrochloric acid is sucked upwards, और exactly 25 cm क्यूब इसकी कैपेसिटी होती है, और फिर इसको Yes, sir. उठा के ना उसके अंदर एम्प्टी कर देते हो, ठीक है, is this clear? Okay, sir. Yes, sir. तो pipette or and it's a very accurate device, so you pipette exactly 25 cm cube of H2SO4 into the conical flask। अच्छा फ्लास्क के अंदर और क्या डालना है, इंडिकेटर डालना है, तो add a few drops of phenolphthalein indicator, into the conical flask। चल हम कुछ भी डाल दें फिनोल्फथीन या दूसरा वाला। हाँ मतलब यही दो हैं खाली, ठीक है, मतलब जो आपको याद रखने हैं वो ये दो हैं। Remember, litmus paper is also an indicator, सही। litmus solution is also an indicator, universal indicator paper भी होता है, but they are not used in titration क्योंकि वो usually solution के फॉर्म में नहीं होते, ठीक है, तो हाँ सही क्वेश्चन आया था इसमें हाँ पेपर 6 में कि जो है ना हमने इंडिकेटर क्यों नहीं यूज कर रहे हम लोग। नहीं वो वो redox titration होगी, मतलब उसका इससे फिर ताल्लुक नहीं होगा, ओके सर। ठीक है, मतलब वो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन जो होती है ना उसके अंदर इंडिकेटर्स यूज होते हैं जिसमें पीएच वगैरह चेंज हो रहा होता है, वो वो एक और चीज है, वो बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा ऐड अ फ्यू, उसको बिल्कुल साइड पे कर दो, वो जो तुम्हारा क्वेश्चन है ना वो मैं समझ गया कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, मतलब वो भी टाइट्रेशन है और इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट टाइट्रेशन। अच्छा ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ फिनोल्फथलीन इंडिकेटर इनटू कॉनिकल फ्लास्क, एंड उसके बाद क्या करना है, स्टार्ट टाइट्रेशन, और टाइट्रेशन किस तरह करनी है, स्लोली करनी है, मतलब एकदम से ऊपर से ब्यूरेट से उल्टा दिया ना तो वो तो गलती से ज्यादा डल जाएगा, ठीक है, सो स्टार्ट टाइट्रेशन, ऐड KOH ड्रॉप बाय ड्रॉप, वेरी वेरी स्लोली, क्योंकि आपने एक्यूरेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि टैप ऑफ करना है ना, तो यू हैव टू टर्न ऑफ द टैप एट एग्जैक्टली द राइट टाइम, ऐड KOH ड्रॉप बाय ड्रॉप, व्हेन डू यू स्टॉप टाइट्रेशन, व्हेन यू सी अ कलर चेंज, इस वाले केस में हमारा कलर चेंज क्या हो रहा था, पहले एसिड था तो वो फिनोल्फथलीन कलरलेस था, एंड देन वो एक भी एक्स्ट्रा ड्रॉप KOH का डलेगा ना, दैट वुड टर्न पर्पल, so stop titration when color changes from colorless to purple, बल्कि इसको
पिंक कर लेते हैं क्योंकि वो डाइल्यूट होता है, ठीक है। अच्छा, अब मसला ये कि बन गई है, सॉल्ट और वाटर बन गया ना, राइट। सॉल्ट एंड वाटर हैज बीन फॉर्म्ड, टाइट्रेशन खत्म हो गई है ना, आपने एक्स्ट्रा KOH डाला है और सल्फ्यूरिक एसिड भी सारा रिएक्ट हो चुका है। ये मुझे बताओ कि व्हाट इज नाउ contaminating your salt? I mean, what substance is contaminating the salt? Any idea? सल्फ्यूरिक एसिड तो सारा रिएक्ट कर चुका है, KOH भी आपने एक्स्ट्रा नहीं डाला, आप एग्जैक्ट इस पॉइंट पे आके रुक गए हो। हसन कोई आइडिया? हमजा, नूर, एनी आइडिया? मरियम? हमजा, मरियम, can you hear me? Yes, sir. So your voice was lagging out. Can you Yes, repeat? sir. ठीक है, चलो बस वो मैं दे देता हूँ कि the only thing that's now contaminating your salt is the indicator itself. वो इंडिकेटर ही बीच में आपने जो डाला हुआ है ना, वो कंटामिनेट कर रहा है सॉल्ट को। मतलब you've gotten salt and water, but the indicator is contaminating it. So how do you remove the indicator? What you do is you note down the volumes used, क्योंकि अब पता तो लग गया कि कितना वॉल्यूम कितने के साथ रिएक्ट कर रहा है। पहले तो ये नहीं पता था कि वो टैप को ऑफ कब करना है, अब आपको पता लग गया कि किस पॉइंट पे टैप को ऑफ करना है। So you just note down the volumes used and repeat the whole process, but this time you don't need an indicator. Hamza, clear है? Yes, sir. So repeat your titration without indicator, and once you've repeated it, Sir, yes, you wrote note down volume used? volumes used. Okay. मतलब वो ऊपर से जो हम ऐड कर रहे थे, हमें नहीं पता था ना, हमने इसलिए वो टैप को कभी ऑन कर रहे थे, ऑफ कर रहे थे, कलर Yeah. चेंज। Okay. But once you've done the first iteration, you know exactly when to turn off the tap, right? Yeah. तो you can, तो उसके बाद दोबारा टाइट्रेशन करो, but this time don't add an indicator, क्योंकि आपको तो पहले से पता है कि टैप कब ऑफ करना है। अब क्रिस्टलाइजेशन कर लो, that would be the last part. क्रिस्टलाइजेशन किस तरह होगी कि evaporate, अच्छा, evaporate the solution to saturation point. ये वही टाइट्रेशन का, वो क्रिस्टलाइजेशन का बार बार लिख रहे हैं। evaporate the solution to saturation point, cool gradually and filter off any crystals formed, and dry crystals in sunlight. ठीक है, so is this clear? Mariam, Hamza, is this clear? Yes, sir. Yes, चलो ठीक है, we'll continue with this tomorrow then, ठीक है? और questions करेंगे इससे। चलिए, okay then, ठीक है, अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz, sir. अल्लाह हाफिज।